جب روزے قیامت میرے نانا جان محمد عربی کے سامنے جاؤ گے تب یہ لوگ وفاداروں کی صف میں ہوں گے اور تم غداروں کی صف میں. تم وفاداروں کی، ہم وفاداروں کی صف میں ہوں گے اور یہ غداروں کی صف میں. آپ اس چیز کو دیکھیے گا. امام احمد رضا خان کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، سادات کرام کی دعاؤں کے نتیجے کا نام امام احمد رضا خان، بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے کا نام امام احمد رضا خان. آپ اس چیز کو سمجھیے جانے گرامی، اپنے عقائد و نظریات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیے. اور جو لوگ آج آس پاس کے بستی کے آس پاس کے علاقے میں بہت سے ایسے کیٹاڑو ایرانی پھیل رہے ہیں، جب ایرانی کیٹاڑو پھیلے تو عزیزان گرامی مسلک اعلیٰ حضرت کی ویکسین لگانا شروع کر دینا. بریلی کے امام احمد رضا کی ویکسین لگانا شروع کر دینا. یہ ایسے بھاگیں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ بھاگا، اور یہ ایسے بھاگیں گے جیسے بنگلور میں ڈپلوما بھاگا اور جھانسی میں کوئی اور بھاگا. جتنا دم لگا سکتے ہو لگا لو. عزیزان گرامی، حق کو میرے خدا نے بلند کیا ہے، حق کو میرے خدا نے بلند کیا ہے. اب آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے، جان لیجئے، پہچان لیجئے. عقائد و نظریات سے ہرگز ادھر ادھر مت ہونا، ہرگز ادھر ادھر مت ہونا، کیونکہ عقائد و نظریات کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہوگا ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. آخری بات عزیزان گرامی اور سمجھیے، کیونکہ آج سب سے بڑا حربہ ہمارے بچوں کے عقائد میں ڈالا جاتا ہے. اس حربے کا نام ہے حضرت امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ کاتب وحی امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ خال المؤمنین امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ جس کے اسلام کی ضمانت میرے نبی نے لی ہو وہ امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ جس کو حسن نے اپنا خلیفہ مانا ہو، اپنا بادشاہ مانا ہو. عزیزان گرامی، اس ذات کا نام امیر معاویہ. آج ہمارے نوجوان بچوں کو برین واش کر جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑا کرنے کی سازش کرتے ہو، آج ان سے یہ بتا دو کہ ہم لوگ نہ صحابہ کا دامن چھوڑنے والے ہیں نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنے والے. ہم وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ پر صحابہ کا دامن، دوسرے ہاتھ پر اہل بیت کا دامن. ہمارا تو عقیدہ امام احمد رضا نے بتا دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اب اس چیز کو سمجھیے. ابھی میں ایک چھوٹا سا ایک سوال آپ کو پوچھ لیتا ہوں اور اپنی گفتگو کو آخری بات میں داخل کرتا ہوں. ایک سوال ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ 10 محرم. اکثر و بیشتر سب جانتے ہیں کہ میرا حسین 10 محرم کو شہید ہوا. 90% سے زیادہ افراد یہ جانتے ہیں کہ میرا حسین 3 شعبان المعظم کو متفقہ طور پر دنیا میں تشریف لایا. لیکن کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو سو کالڈ میلائی کہتے ہوئے گھومتے ہیں، کون ہیں؟ ہم میلائی ہیں، ہم میلائی ہیں. کبھی ان کو امام حسن کی شہادت مناتے دیکھا؟ کبھی ان کو امام حسن کی ولادت مناتے ہوئے دیکھا؟ ان سے اگر پوچھ بھی لوگے کہ ولادت کی تاریخ کیا ہے، شہادت کی تاریخ کیا ہے، تو 100% افراد کو نہیں معلوم ہوگا کہ ولادت کی تاریخ کون سی ہے، شہادت کی تاریخ کون سی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغوں میں جو پروپیگنڈا ایران سے بھرا ہوا ہے وہ آج یہاں پر چلائیں گے. یہاں پر ایران کا پروپیگنڈا نہیں چلنے والا. ہم تم کو ببانگے دوحل بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ امام حسین کا، آپ دیکھیے ان کو کھڑے ہو کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کیا صرف حسین ہی کو لبیک کہو گے؟ کیا یہ نہیں کہہ سکتے ہو لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین؟ حسن وہ ہے جسے حسین نے اپنا امام کہا. حسن وہ ہے جسے حسین نے اپنا امام کہا. میرے علی کا پہلا بیٹا امامت کے پھول کی دوسری کلی
सैयदे कायनात का वो लख्ते जिगर। हुसैन की बात आई तो आपने कह दिया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इतना बड़ा मकाम है। लेकिन क्या कभी आपने सुना इनके मुंह से कि हसन के ताल्लुक से क्या कहते हैं? कभी नहीं। कभी आपने इनसे कहा कि हुसैन के लिए कहा गया हुसैन सैयदे शबाब अहले जन्नत है, क्या हसन के ताल्लुक से नहीं सुना आपने? अज़ीज़ाने गिरामी, ये प्रोपेगेंडा क्या है कि जब इनको हसन के ताल्लुक से कोई दिन मनाया जाएगा, कोई दिन मनाना पड़ेगा, तो इनको मनाक़िब भी बताने पड़ेंगे, फ़ज़ाइल भी बताने पड़ेंगे, शहादत भी बतानी पड़ेगी, ज़िंदगी भी बतानी पड़ेगी, हर शय बतानी पड़ेगी। तो इनको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे रसूल ने कहा मेरा हसन मेरे आंखों की ठंडक है। इनको ये भी बताना पड़ेगा कि हसन हुसैन के साथ साथ हसन के लिए भी कहा ऐ हसन तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। इनको ये भी बताना पड़ेगा कि ऐ हसन, रसूल करीम ने ये फरमाया ऐ हसन तू सैयदे शबाबे अहले जन्नत है। इनको ये भी बताना पड़ेगा एक बशारत उज़्मा जिसको ये छुपाने की कोशिश करते हैं, वो ये बशारत उज़्मा कि जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने कहा ये मेरा बेटा सैयद है और आने वाले वक्त में उम्मत के दो बड़े मुसलमान गिरोह में सुलह करवाएगा। अब एक छोटा सा बच्चा खड़ा होगा और खड़े होकर ये कहेगा हजरत आप कह रहे हैं कि दो बड़े मुसलमान गिरोह में सुलह करवाएगा, तो वो दो बड़े मुसलमान गिरोह कौन से हैं? तो ला मुहाला मुल्ला जी को बताना पड़ेगा। एक गिरोह का नाम इमाम हसन और दूसरे गिरोह का नाम अमीर मुआविया। ला मुहाला बताना पड़ेगा। अब बच्चा फिर सवाल करेगा कि इस्लाम की जमानत खुद मेरे नबी ने ली हो, आप उसको बागी कैसे कह सकते हो? यहाँ पे खुलेगी पोल। तो मेरे बच्चों, उलमा की सोहबत में बैठो, मेरे हम उम्र साथियों, मेरे प्यारे छोटे भाइयों, इन उलमा की सरपरस्ती में रहो, इनकी छत्र छाया में रहो, इन्हीं की अंडर गाइडेंस रहो। इन फेसबुक और यूट्यूब के मौलवी मौलानाओं के पीछे मत पड़ना जो ये तरह तरह की बातें समझा रहे हैं। अगर कोई आए भी ऐसा मैलाई और आकर तुम्हारी ईमान पर ज़र्ब लगाने की कोशिश करे तो तुम उनसे यही कहना मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, जूतों से समझोगे तो जूतों से, जैसे समझोगे हम वैसे समझाएंगे। हम दो डिलीवरियां रखते हैं, किताबों की भी और जूतों की भी। अकायद पर कोई हमला नहीं सहा जाएगा, हमारे जो अकीदे हैं उनके ऊपर हमला नहीं सहा जाएगा। हमारा अकीदा ये है अबू बकर पहला, उमर दूसरा, उस्मान तीसरा, अली चौथा और हसन पांचवा। यही अकीदा हमारा है और सुबह क़यामत तक यही अकीदा हमारा रहेगा। और हम ये कहते जाएंगे डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और कह देना हसनैन आया था, अगर किसी को दलाइल से बात करनी हो तो फिर से इस बस्ती में एक स्टेज सजेगा और मैं बता दूं कौन हूं मैं। ऐसे वैसा ना समझना, तुम्हें मैं बताऊं एक वक्त में इन्हीं के आसपास रहने वाले जो इधर उधर आजकल इधर के उधर के ईरानी फिक्र रख रहे हैं, पाकिस्तानी प्लम्बर की फिक्र रख रहे हैं, बता दूं मैं तुम्हें बाप हूं तुम्हारा, पहचान लो मेरी शक्ल। बरेलवियों से अकीदे में ना उलझना, पहचान लो मेरी शक्ल। बस्ती के अंदर अराजकता नहीं चलेगी, बस्ती के अंदर धमकियां नहीं चलेंगी, बस्ती के अंदर फर्जी खबरें नहीं चलेंगी। बस्ती के अंदर अगर कुछ चलेगा तो उस जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है। और जिसको मसलक जिस अंदाज में समझना हो, चाहे वो जहां के हो चाहे पीलीभीत के हो तो भी समझ ले, चाहे इधर उधर के हो आसपास के वो भी समझ ले कि हम मसलक समझाने में पीछे नहीं हटते हैं। जैसे समझोगे वैसे समझाएंगे। तो बता देना कौन आया था? हसनैन बकाई आया था। कहां से
से आया था, सफीपुर से आया था। कौन सफीपुर? जिसका शजरा पढ़ पढ़ कर तुम्हारे बुजुर्ग बुजुर्ग हो गए, वो सफीपुर। जिनके नाम की रोटियां सेक कर आज भी तुम खा रहे हो, वो सफीपुर वहां से आया है। अज़ीज़ान गिरामी, मसलक वालों से उलझने की कोशिश ना करना। मैं एक बात साफ आप लोगों से बता दूं, मसलक से जरा भी मुंह बराबर हटे, या तो किसी ऐसे गिरोह में चले जाओगे जिनको ना हुजूर की शफाअत नसीब होनी है, या ऐसे गिरोह में चले जाओगे जो सहाबा पर तबर्रा कर कर जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम तो यही कहते हैं, अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। हमारा एक अक़ीदा ये है, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और अगर फिर भी किसी को अपने इल्म का नशा चढ़े तो आ जाना सामने हसनैन के, बैठ जाना। तुम्हारा नशा हिरन करने के लिए हसनैन की जबान ही काफी है, जूते तक पहुंचने का नतीजा नहीं आएगा। अपनी तारीफ में बता दूं, फलक को पढ़ा कभी दिल जलो से काम नहीं, और जला के राख न कर दूं तो हसनैन ना। मसल के आला हजरत से उलझने की कोशिश न करना। हम जिस दिन फतावा रिजविया की जिल्दे रखकर तुम्हारी छाती पर बैठ गए, उसी दिन तुम्हारा दम निकल। आओ, हम तो कहते हैं ना, हमसे अबू बकर की बात करनी हो करो, उमर की बात करनी हो करो, हम तो अमन पसंद अफराद है ना। लेकिन तुम हमारे बुजुर्गों को गालियां बकोगे, हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं। हमारे असहाब किराम को बुरा बोलोगे? नहीं। तुम क्या करोगे? प्रोग्राम कैंसिल करवाओगे? तुम क्या करोगे? फोन कर 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 धमकियां दोगे? अज़ीज़ान गिरामी, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम हुसैन शहीद करबला के मानने वाले हैं। हम सच्चे हुसैनी, हम सच्चे हसनी, हम सच्चे अली वाले, हम सच्चे उस्मान वाले, हम सच्चे उमर वाले, हम सच्चे अबू बकर वाले। कौन उमर? जिसके एक दुर्रे से जमीन का कांपना रुक जाए, उस जात को उमर कहते हैं, और उनके गुलामों को बरेलवी कहा जाता है। कौन उमर? जिसकी कमीज अगर ज्वालामुखी के पास रख दी जाए, वोल्केनो के पास रख दी जाए, और कह दिया जाए ये उमर का जमाना है, रुक जा, तो वो जमीन साकिन हो जाए, वो लावा साकित हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, हम उस उमर के मानने वाले हैं। हमसे बात करोगे? मेरे प्यारे दोस्तों, अकायद और नजरियात अपने सही रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, इस्लाम में सच्चाई के साथ चलिए। जो मैंने आपको एक नसीहत शुरू में की, वो मौजू नहीं था मेरा, मौजू रद्द राफिजियत था मेरा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आप लोग इस चीज़ का ख्याल करिए कि आप लोग अगर महफिलों में रहें तो बहुत सुकून के साथ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहकर खतीब का जज्बा बढ़ाइए, नारों की गूंज लगाकर लोगों को बताइए कि हम किस नबी के मानने वाले हैं, हम किस खुदा के मानने वाले हैं, हम किन बुजुर्गों के मानने वाले हैं। जिस दिन अज़ीज़ान गिरामी आपके अंदर ये सच्चाई के साथ अकीदा हो गया ना कि जिनकी महफिल है वो महफिल में ज़रूर आते हैं, तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएंगे भी।